السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک نہایت اہم اور حساس اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کا براہ راست تعلق لاکھوں مستحق خاندانوں کی آنے والی اقساط، مفت سرکاری سم، ڈیجیٹل وائلٹ اور ادائیگی کے نئے طریقہ کار سے ہے۔ یہ معاملہ اس لیے فوری توجہ کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں نئی قسطوں کی ادائیگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس اپڈیٹ سے وہ خاندان متاثر ہوں گے جو پہلے سے پروگرام میں شامل ہیں، وہ بھی جو حال ہی میں اہل قرار پائے ہیں اور وہ بھی جن کی ادائیگیاں بند کر دی گئی تھی۔ اس وقت درست معلومات نہ ہونا لوگوں کو مالی نقصان، کٹوتی اور غلط فیصلوں کی طرف لے جا سکتا ہے، اس لیے باخبر رہنا ہر مستحق شہری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کرنا واضح ہے اور بے حد ضروری ہے کہ جو نئی سمیں دی جا رہی ہیں وہ بالکل مفت ہیں اور یہ کسی نجی کمپنی یا ایجنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ حکومت پاکستان اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں۔ یہ سمیں صرف اور صرف سرکاری دفاتر یا نامزد کیمپ سائٹ سے فراہم کی جائیں گی۔ کسی دکان، ایجنٹ یا فرد کو اس کے لیے پیسے دینا غیر قانونی ہے۔ ان سموں کا مقصد مستحق خواتین کو براہ راست ڈیجیٹل وائلٹ کے ذریعے ان کی رقم پہنچانا ہے تاکہ لائنوں، کٹوتیوں اور بد انتظامی کا خاتمہ ہو سکے۔ حکومتی حکام کے مطابق یہ نظام بتدریج نافذ کیا جا رہا ہے اور اس میں شفافیت کو بنیادی اصول بنایا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ سے سم کے نام پر رقم مانگے تو فوراً سمجھ جائیں کہ وہ دھوکہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں نئی قسط کے حوالے سے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بار رقم معمول سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مستحق خاندانوں کو ایک کے بجائے 2 یا 3 اقساط ایک ساتھ دی جا رہی ہے۔ خاص طور پر وہ خاندان جن کی اکتوبر سے دسمبر کی قسط تاخیر کا شکار رہی، اب انہیں جنوری میں ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تعلیمی وظائف کی وہ اقساط بھی شامل کی جا رہی ہیں جو پچھلے مہینوں میں جاری نہیں ہو سکی۔ اس صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مستحق فرد کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم آ رہی ہے تاکہ وہ پوری رقم وصول کر سکے اور کسی بھی کٹوتی سے بچ سکے۔ رقم چیک کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 2 باضابطہ اور محفوظ طریقے متعارف کروائے ہیں۔ پہلا طریقہ BISP کی ہیلپ لائن کے ذریعے ہے جس کا نمبر 080026477 ہے۔ اس نمبر پر اپنی ذاتی سم سے کال کر کے آپ نمائندے سے بات کر سکتے ہیں۔ زبان کا انتخاب کر کے اپنی شناختی معلومات فراہم کریں اور اپنی اہلیت، قسط کی تفصیل، بچوں کے وظائف اور موجودہ بیلنس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اس ہیلپ لائن کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ یہی سب سے محفوظ اور براہ راست ذریعہ ہے۔ چند روپے کے بیلنس کے ذریعے گھر بیٹھے معلومات حاصل کرنا سینکڑوں روپے خرچ کر کے ایجنٹ کے پاس جانے سے کہیں بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رقم نکلوانے کے لیے کسی ریٹیلر یا ادائیگی پوائنٹ پر جائیں تو سب سے پہلے اسکریننگ کروائیں۔ اس اسکریننگ کے بعد آپ کو ایک ٹوکن یا پرچی دی جاتی ہے جس پر آپ کی مکمل رقم درج ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اسی رقم کے مطابق اپنی ادائیگی وصول کریں اور موقع پر ہی رقم گن لیں۔ اگر کوئی ریٹیلر 1 روپیہ بھی کٹوتی کرنے کی کوشش کرے تو یہ آپ کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی صورت میں فوری طور پر ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائیں اور قریبی BISP دفتر میں بھی اطلاع دیں تاکہ کارروائی کی جا سکے۔ اب ایک نہایت اہم اپڈیٹ ان خاندانوں کے بارے میں ہے جنہیں حال ہی میں نااہل قرار دیا گیا تھا یا جن کی ادائیگیاں بند ہو گئی تھی۔ حکام کے مطابق بڑی تعداد میں ایسے افراد شامل ہیں جنہوں نے ڈائنامک سروے مکمل نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ادائیگیاں روک دی گئیں۔ تاہم اب انہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ڈائنامک سروے مکمل کروائیں اور اگر وہ معیار پر پورا اترتے ہیں تو دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ اس کے برعکس وہ خاندان جن کا سروے درست ہے اور جو مسلسل اہل رہے ہیں، ان کی ادائیگیاں بحال ہیں اور انہیں اضافی اقساط بھی دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح 2 نئے طبقات کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک وہ خاندان جو پہلے کسی وجہ سے خارج ہو گئے تھے
लेकिन अब भी मयार पर पूरा उतरते हैं, और दूसरे वो नए खानदान जिन्होंने हाल ही में पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाई है, जैसे नए शादीशुदा जोड़े। अगर इनका PMT स्कोर मुकर्ररा हद से कम है तो इन्हें 2026 में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करना है, ताहम इसके लिए दुरुस्त मालूमात और बर वक्त सर्वे लाजमी शर्त है। डिजिटल वायलेट सिस्टम के तहत मुस्तकबिल में ये मंसूबा बनाया गया है कि मुस्तहिक खवातीन को घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक और रकम की मुंतकिली की सहूलत दी जाए। इससे इन्हें बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी एजेंट पर इन्हसार करना पड़ेगा। इब्तदाई मरहले में पहली किस्त रिटेलर के जरिए वसूल की जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये निजाम मजीद आसान बनाया जाएगा। इस तब्दीली का मकसद खवातीन को बाअख्तियार बनाना और इनके माली हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब आखिर में ये समझना बेहद जरूरी है कि ये तमाम इक़दामात इस वक्त मौसर होंगे जब आवाम को दुरुस्त मालूमात हासिल हो, गलत अफवाहें, जाली पैगामात और गैर मुसद्दक़ा दावे न हो लोगों को गुमराह करते हैं, बल्कि इन्हें माली नुकसान भी पहुंचाते हैं। हर मुस्तहिक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करे, हेल्पलाइन इस्तेमाल करे और किसी भी गैर कानूनी मुतालबे की फौरी इत्तला दे। अगर हम बाखबर रहेंगे तो न सिर्फ अपना हक महफूज रख सकेंगे बल्कि दूसरों को भी नुकसान से बचा सकेंगे। इस मसले की अहमियत सिर्फ एक किस्त तक महदूद नहीं बल्कि ये लाखों खानदानों के मुस्तकबिल और एतमाद से जुड़ी हुई है। अवामी आगाही ही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए निजाम में मौजूदा खामियों को कम किया जा सकता है और शफाफियत को फरोग दिया जा सकता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो इन्हें दूसरों तक पहुंचाना भी एक समाजी जिम्मेदारी है। इसीलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अहम और मुस्तनद अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि दुरुस्त मालूमात ही मुस्तहिक अवाम का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक निहायत अहम और हसास अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक लाखों मुस्तहिक खानदानों की आने वाली इकसात, मुफ्त सरकारी सिम, डिजिटल वॉलेट और अदायगी के नए तरीकाकार से है। ये मामला इसलिए फौरी तवज्जो का तकाजा करता है क्योंकि इसी महीने में नई किस्तों की अदायगी शुरू होने जा रही है। इस अपडेट से वो खानदान मुतासिर होंगे जो पहले से प्रोग्राम में शामिल हैं, वो भी जो हाल ही में अहल करार पाए हैं और वो भी जिनकी अदायगियां बंद कर दी गई थी। इस वक्त दुरुस्त मालूमात न होना लोगों को माली नुकसान, कटौती और गलत फैसलों की तरफ ले जा सकता है। इसलिए बाखबर रहना हर मुस्तहिक शहरी के लिए निहायत जरूरी है। सबसे पहले ये बात करना वाज़ेह है और बेहद जरूरी है कि जो नई सिमें दी जा रही हैं वो बिल्कुल मुफ्त है और ये किसी निजी कंपनी या एजेंट की तरफ से नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी की जा रही हैं। ये सिमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफातर या नामजद कैंप साइट से फराहम की जाएंगी। किसी दुकान, एजेंट या फर्द को इसके लिए पैसे देना गैर कानूनी है। इन सिमों का मकसद मुस्तहिक खवातीन को बराह रास्त डिजिटल वॉलेट के जरिए इनकी रकम पहुंचाना है ताकि लाइनों, कटौतियों और बद इंतजामी का खात्मा हो सके। हुकूमती हकाम के मुताबिक ये निज़ाम बतदरीज नाफिज किया जा रहा है और इसमें शफाफियत को बुनियादी असूल बनाया गया है। इसलिए अगर कोई शख्स आपसे सिम के नाम पर रकम मांगे तो फौरन समझ जाएं कि वो धोखा है। अब बात करते हैं नई किस्त के हवाले से, जिसके बारे में ये बताया गया है कि इस बार रकम मामूल से ज्यादा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि कुछ मुस्तहिक खानदानों को एक के बजाय 2 या 3 एक साथ दी जा रही है। खास तौर पर वो खानदान जिनकी अक्टूबर से दिसंबर की किस्त ताखीर का शिकार रही, अब इन्हें जनवरी में अदा की जाएगी। इसके अलावा तालीमी वज़ाइफ की वो इकसात भी शामिल की जा रही हैं जो पिछले महीनों में जारी नहीं हो सकी। इस सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि हर मुस्तहिक फर्द को पहले से मालूम होना चाहिए कि इसके अकाउंट में कितनी रकम आ रही है ताकि वो पूरी रकम वसूल कर सके और किसी भी कटौती से बच सके। रकम चेक करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 2 बाज़ाब्ता और महफूज तरीके मुतारिफ करवाए हैं। पहला तरीका BISP की हेल्पलाइन के जरिए है
जिस का नंबर 080026477 है। इस नंबर पर अपनी जाती सिम से कॉल करके आप नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। जुबान का इंतखाब करके अपनी शनाख्ती मालूमात फराहम करें और अपनी अहलियत, किस्त की तफसील, बच्चों के वज़ाइफ और मौजूदा बैलेंस के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोग इस हेल्पलाइन को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि यही सबसे महफूज और बराह रास्त जरिया है। चंद रुपए के बैलेंस के जरिए घर बैठे मालूमात हासिल करना सैकड़ों रुपए खर्च करके एजेंट के पास जाने से कहीं बेहतर है। दूसरा तरीका यह है कि जब आप रकम निकलवाने के लिए किसी रिटेलर या अदायगी पॉइंट पर जाएं तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करवाएं। इस स्क्रीनिंग के बाद आपको एक टोकन या पर्ची दी जाती है जिस पर आपकी मुकम्मल रकम दर्ज होती है। इसके बाद आपको चाहिए कि इसी रकम के मुताबिक अपनी अदायगी वसूल करें और मौके पर ही रकम गिन लें। अगर कोई रिटेलर 1 रुपया भी कटौती करने की कोशिश करे तो ये आपके हक की खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाएं और करीबी BISP दफ्तर में भी इतला दें ताकि कार्रवाई की जा सके। अब एक निहायत अहम अपडेट इन खानदानों के बारे में है जिन्हें हाल ही में नाअहल करार दिया गया था या जिनकी अदायगियां बंद हो गई थी। हकाम के मुताबिक बड़ी तादाद में ऐसे अफराद शामिल हैं जिन्होंने डायनामिक सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया था, जिसकी वजह से इनकी अदायगियां रोक दी गयी। ताहम अब इन्हें एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाएं और अगर वो मयार पर पूरा उतरते हैं तो दोबारा प्रोग्राम में शामिल हो सके। इसके बरअक्स वो खानदान जिनका सर्वे दुरुस्त है और जो मुसलसल अहल रहे हैं, इनकी अदायगियां बहाल हैं और इन्हें अजाफी इकसात भी दी जा रही हैं। इसी तरह 2 नए तबकात को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। एक वो खानदान जो पहले किसी वजह से खारिज हो गए थे लेकिन अब भी मयार पर पूरा उतरते हैं, और दूसरे वो नए खानदान जिन्होंने हाल ही में पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाई है, जैसे नए शादीशुदा जोड़े। अगर इनका PMT स्कोर मुकर्ररा हद से कम है तो इन्हें 2026 में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करना है, ताहम इसके लिए दुरुस्त मालूमात और बर वक्त सर्वे लाजमी शर्त है। डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत मुस्तकबिल में ये मंसूबा बनाया गया है कि मुस्तहिक खवातीन को घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक और रकम की मुंतकिली की सहूलत दी जाए। इससे इन्हें बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी एजेंट पर इन्हसार करना पड़ेगा। इब्तदाई मरहले में पहली किस्त रिटेलर के जरिए वसूल की जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में यह निजाम मजीद आसान बनाया जाएगा। इस तब्दीली का मकसद खवातीन को बाअख्तियार बनाना और इनके माली हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब आखिर में ये समझना बेहद जरूरी है कि ये तमाम इक़दामात इस वक्त मौसर होंगे जब आवाम को दुरुस्त मालूमात हासिल हो, गलत अफवाहें, जाली पैगामात और गैर मुसद्दक़ा दावे न हो लोगों को गुमराह करते हैं बल्कि इन्हें माली नुकसान भी पहुंचाते हैं। हर मुस्तहिक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करे, हेल्पलाइन इस्तेमाल करे और किसी भी गैर कानूनी मुतालबे की फौरी इतला दे। अगर हम बाखबर रहेंगे तो न सिर्फ अपना हक महफूज रख सकेंगे बल्कि दूसरों को भी नुकसान से बचा सकेंगे। इस मसले की अहमियत सिर्फ एक किस्त तक महदूद नहीं बल्कि ये लाखों खानदानों के मुस्तकबिल और एतमाद से जुड़ी हुई है। अवामी आगाही ही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए निजाम में मौजूदा खामियों को कम किया जा सकता है और शफाफियत को फरोग दिया जा सकता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो इन्हें दूसरों तक पहुंचाना भी एक समाजी जिम्मेदारी है। इसीलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अहम और मुस्तनद अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि दुरुस्त मालूमात ही मुस्तहिक अवाम का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह हाफिज।